students. Till now, in the 9th standard, we have started studying the chapters that belong to the chemistry section. Now from today onwards, we are going to start the chapters that belong to physics section. तो फिजिक्स सेक्शन में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 8 मोशन. नाउ बिफोर वी बिगिन द चैप्टर, let me tell you certain basic things about the physics part of your textbook. This physics part of your textbook, the chapters which are included in the physics part are very important for a later standards, not only 10th, forget 10th. They will be applicable in 11th as well as 12th. So you are going to build the base of your physics from standard 9. Secondly, whatever chapters are there in the physics part, फिजिक्स पार्ट में जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें से ज्यादातर जो चैप्टर्स है दैट हैव न्यूमेरिकल्स इन देयर. So there is quite a good chunk of your marks that will depend on the numericals. तो जो आप फिजिक्स के चैप्टर पढ़ने वाले हो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आएंगे. As I said earlier, these formulas won't only be important for 9th standard. अब जो 9th standard में जो फिजिक्स में फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हो वो फॉर्मूलाज आपको आपके फर्दर स्टडीज में भी बहुत काम आने वाली है. These formulas you will use to solve various kinds of numericals. So almost all the chapters of the physics part have numericals in them. The first chapter that we are going to study, motion, 75% weightage will be given to the numericals itself. So in this particular chapter, theory part is very less, but you have certain derived equations and those equations you have to use for solving various numericals. So I gave you the introduction of physics and what we are going to learn in physics in standard 9. So be very alert, be very careful. आपको जो रोज लेक्चर पढ़ाया जाए उसको उसी दिन प्रॉपरली रिवाइज कर दो. If you have any doubts, get them solved. Then physics part will appear very easy to you. So now let's move to the introduction part of the chapter. As I said earlier, जो हमारा पहला चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले थे, चैप्टर नंबर 8 मोशन. So first we need to understand what is the meaning of motion. Whenever any object changes its position with respect to time, then we say that that object is in motion. If I take the whole lecture standing at this position, then my body is not in motion. But during the course of lecture, if I keep moving from the left part to right part, then my body is in motion. So there are many examples in day-to-day life which gives us example of motion, like a moving car. जब एक कार एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो we can say that the car is in motion. When you are using your bicycle while going from one place to another, then your bicycle is in motion. When the washing machine is moving, the part of washing machines are moving to clean the clothes, then that part is in motion. When you are sitting on a swing, अब जब झूले पे बैठ के झूला झूलते हो, that is also example of motion. The blades of fan जब वो rotate करती है, so that also depicts a type of motion. So we all know definitely what the motion is. अभी अब तक हमने जो examples डिस्कस किए मोशन के, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको मोशन दिखता है.
because when car is in motion you can see that the car is moving from one place to another. जब मैंने बाइसिकल की बात की तो आप बाइसिकल को देख सकते हो कि ये बाइसिकल यहाँ से वहाँ तक गई तो बाइसिकल ने मोशन परफॉर्म किया, ठीक है। फैंस जो होती है उसकी जो ब्लेड्स होती है वो रोटेट होती है तो दिखती है क्या, ब्लेड्स आर रोटेटिंग, दैट मींस इट्स इन मोशन। बट motion of certain things are not seen, it is felt. जैसे कि अगर समर का दिन है, आप घर के बाहर चेयर डाल के बैठे हो और अगर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा तो आप क्या बोलेंगे कि हवा नहीं चल रही है, मीन्स एयर इज नॉट इन मोशन। बट व्हेन देयर इज अ साइक्लोन एंड ट्रीज आर स्विंगिंग, धूल उड़ रही है, कागज उड़ रहे हैं हर जगह पे, then we know that wind is in motion. You can't see the wind, but you can feel that wind is in motion. जब ट्रीज की ब्रांचेस हिलती है, जब धूल उड़ती है, तो इससे इनडायरेक्ट प्रूफ मिलता है कि जो एयर है दैट इज इन मोशन। सो बेसिकली टिल नाउ वी हैड इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन, वी डिस्कस्ड सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ मोशन। लास्ट में हमने ये भी पढ़ा कि सर्टेन केसेस में देयर इज इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ मोशन, यानी कि मोशन हमको दिखती नहीं है बट वी फील दैट मोशन, लाइक द मोशन ऑफ विंड, द मोशन ऑफ एयर। नाउ अनदर टर्म दैट वी नीड टू डिस्कस इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या क्या मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक इंसान को लगता है कि दैट इज इन मोशन, but for other person that object is stationary. I repeat, relative motion का मतलब क्या है, that for one person the object is moving, but for another person the object is stationary. Can you think of any such examples? Okay dear friends, आप रेलवे स्टेशन पे तो गए होंगे, ठीक है। जब ट्रेन में दो लोग आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, एंड ट्रेन इज मूविंग, तो जो खिड़की के बाहर बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके लिए आप मोशन में हो, क्योंकि ट्रेन मूव हो रही है उसके साथ आपका बॉडी भी मूव हो रहा है, दैट मीन्स द बॉडी ऑफ दैट पर्सन इज इन मोशन। लेकिन जो दो बंदे गाड़ी के डिब्बे के अंदर बैठे हैं उन दोनों के लिए एक दूसरे की बॉडी मोशन में नहीं लगेगी, क्यों? बिकॉज बोथ आर सीटेड इन देयर रिस्पेक्टिव सीट्स, सो दे कैन नॉट सी देयर बॉडीज मूविंग। तो जो बंदा बाहर खड़ा है उसके लिए आपकी बॉडी मोशन में है, लेकिन जो बंदा गाड़ी के कोच के अंदर आपके सामने बैठा है उसके लिए आपकी बॉडी मोशन में नहीं है, क्यों? बिकॉज हिज मोशन एंड योर मोशन इज सेम एंड इट इज इन द सेम डायरेक्शन। तो रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा है, इसलिए जो बंदा अंदर खड़ा है उसको लगेगा कि आपकी बॉडी है जो मोशन में नहीं है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिलेटिव मोशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको आप लीनियर मोशन बोलते हो। वंस अगेन, व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ पे जब सीधे सीधे जाते हैं तो उसको लीनियर मोशन बोलते हैं। जैसे कोई ट्रेन है वो सीधी पटरी पे जा रही है जहां पे कर्व्स नहीं है, तो उस ट्रेन का मोशन क्या होगा? लीनियर मोशन। देयर इज अ स्ट्रेट हाईवे, on the straight highway a car is moving in the same lane में जा रही है, रास्ते में कोई नहीं है, तो वो मोशन हुआ, वो भी कैसा होगा? लीनियर मोशन, ठीक है। इफ अ प्लेन इज फ्लाइंग विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन स्ट्रेट, तो वो मोशन भी कैसा रहेगा? लीनियर मोशन। सो इन शॉर्ट, whenever any object is moving in a straight path without changing its direction with respect to time, तो ऐसा मोशन होगा लीनियर मोशन। Then we have another examples like circular motion,
वी ऑल्सो हैव ऑर्बिटल मोशन जो एक्जैक्टली सर्कुलर नहीं होती है, जैसे कि जो प्लैनेट्स है वो सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट में घूमते हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मोशन, वो रिवॉल्व करते हैं। वी हैव वाइब्रेशनल मोशन, वी ऑल्सो हैव ऑसिलेटरी मोशन। जब मैंने स्विंग का एग्जांपल लिया था, तो जब स्विंग में आप 2 और 4 जा रहे हो, झूले में ऐसे झूल रहे हो, तो उस मोशन को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, उसका मोशन भी होगा ऑसिलेटरी मोशन। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, बट मेनली इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इजी and the most simple form of motion, that is motion along a straight line. तो 90% जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, that is based on motion along the straight line, which is the simplest form of motion. To understand this type of motion, you need to understand various terms. So now we will study the motion along a straight line in detail, but first we will understand certain terms, because understanding certain terms like what is the meaning of displacement, distance traveled, certain times displacement and distance traveled may be same, they may be different. So when your this concept will be clear, you will be able to understand such type of motion very clearly. And after understanding those terms, we will discuss next terms like speed, velocity, etc. in the next part. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है that the easiest type of motion is motion along the straight line, which is also known as linear motion. Now, for any kind of motion, motion में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होती है। तो whenever you want to describe motion, one term is very very important, and that term is reference point. क्योंकि reference point आपको ये बताता है कि मोशन या डिस्प्लेसमेंट कहां से हुई। तो जब हम पढ़ेंगे मोशन, तो उसमें 2 टर्म्स आएंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल। एंड फॉर बोथ दिस थिंग, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। आपको जब कोई पोजीशन बतानी होती है, तब भी एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपका घर कहां पे है, तो if I tell that okay, my home is at the distance of 2 kilometers, will this much information be enough? No, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी पर है, पर कहां से? बस स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, स्कूल से, मार्केट से, किसी मॉल से, किसी थिएटर से, ये मैंने नहीं बताया। बट इफ आई से that my house is situated at the distance of 2 kilometers from railway station, then railway station becomes the reference point. My shop is 5th from the statue of Mahatma Gandhi. तो जो महात्मा गांधी की जो स्टैच्यू है वो हुआ एक रेफरेंस पॉइंट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है। हियर वी वांट टू डिस्कस द टर्म्स दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल। उसको हम एग्जांपल से लेते हैं। ये ओ से लेके ए तक का जो पाथ है वो आप देख सकते हो, इस स्ट्रेट पाथ। तो इस लाइन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन क्या होगी? इट इज मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। हियर वी आर टेकिंग ओ एज अ रेफरेंस पॉइंट, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है
उसका मोशन स्टार्ट कहां से होता है? फ्रॉम पॉइंट O. सो इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम योर पॉइंट O इज द रेफरेंस पॉइंट, जहां से मोशन की शुरुआत हुई, ठीक है। नाउ इफ ऑब्जेक्ट C or point C is at a distance of 25 km, B is at the distance of 35 km, and A is at a distance of 60 km. Let us say. तो जब ऑब्जेक्ट O से C तक जाता है तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा? तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा 25। जब ऑब्जेक्ट O से B तक जाता है तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा? It will be 35 because this is situated at 25 km, this is situated at 35 km. And when the same object goes till A, तो उसका distance traveled हुआ 60 km. Now, if the object returns and comes back at B, तो यहां पे समझिए ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस होगा 25, दिस डिस्टेंस 0 से 25 है, ये डिस्टेंस हुआ 25, ये 25 से 35 है, यानी ये डिस्टेंस हुआ 10, और ये हुआ 35 से 60, यानी अगेन ये डिस्टेंस हुआ 25. ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन. ये O से जाता है A तक और A से वापस आता है B तक. उसका जो मोशन हुआ फ्रॉम हियर इट गोज टिल हियर एंड देन इट कम बैक हियर एट पॉइंट B. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? तो ये OA डिस्टेंस ट्रैवल हुआ OA प्लस ये डिस्टेंस दैट इज AB. तो दोनों की वैल्यू लिखते हैं. OA जो डिस्टेंस है वो टोटल 25 + 10 + 25 या 0 से लेकर 60 तक, यानी वो डिस्टेंस हुआ 60 किलोमीटर, प्लस A से B तक वापस आए तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? 25 किलोमीटर. सो 60 + 25 दैट इज इक्वल टू 85 किलोमीटर. अगेन अंडरस्टैंड, the object is traveling in a straight line. Object move करना start करता है from point O. So O is your reference point. Point C has a distance of 25 km. Point B is at the distance of 35 km and point A is at a distance of 60 km from the origin. 0 से, ठीक है. तो यहाँ 0 से 25 हुआ तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हुआ 25 किलोमीटर. यहाँ 25 से 35 हुआ, यानी 35 - 25 करोगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हुआ 10 किलोमीटर. और B और A उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 60 - 35 दैट इज अगेन 25 किलोमीटर. नाउ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो O से जर्नी स्टार्ट करता है, O से जाता है A तक और A से वापस आता है B तक. हमको फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? इट वेंट फ्रॉम O टू A. तो जब वो O से A तक गया तो ये जो डिस्टेंस है OA वो कितना है? 60 किलोमीटर. फिर वो A से वापस आया B तक तो वो डिस्टेंस कितना है? AB है 25, तो उसको ऐड किया 25, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिकेम 85 किलोमीटर. नाउ अनदर टर्म that is very important and that we need to learn is displacement. कभी कभी हमको लगता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज द सेम. हाँ, कुछ केस में उसकी वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन कुछ केस में उसकी वैल्यू अलग भी आ सकती है. तो दोनों सेम नहीं है, ये समझना है. हमने अब तक क्या पढ़ा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है. अब हम नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है ये आपको लिखनी है. द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial position to the final position. यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको उस ऑब्जेक्ट की हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट O से लेके C तक गया
तो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 25। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन इज 25, इनिशियल पोजीशन इज 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल दोनों हुआ सेम। इन द सेम वे जब वो ऑब्जेक्ट ए तक गया, वापस नहीं है, ए तक गया, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल क्या हुआ? तो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 60 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? फाइनल पोजीशन दैट इज 60 माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज 0, तो वो भी क्यों हुआ 60। तो हमने तो जो एग्जांपल किए उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल दोनों की वैल्यू सेम आई। हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो हमने जो थर्ड एग्जांपल लिया था वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट ट्रैवल फ्रॉम O to A एंड केम बैक फ्रॉम A to B, यानी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? सो इट ट्रैवल फ्रॉम O to A, दैट इज डिस्टेंस OA विच इज 60 किलोमीटर, एंड देन इट केम बैक फ्रॉम A to B। तो जब A से B वापस आया तब उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 25 किलोमीटर। सो हियर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल वो हो गया हमारा 85 किलोमीटर। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ बाय डेफिनेशन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पोजीशन, यानी इन शॉर्ट फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये रही हमारी फाइनल पोजीशन, क्योंकि फाइनली ऑब्जेक्ट कहां पे आकर रुका है? बी पे। व्हाट इज इनिशियल पोजीशन? ए। तो फाइनल पोजीशन इज 35 माइनस इनिशियल पोजीशन इज 0, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 35 किलोमीटर। ऑल्दो डिस्टेंस ट्रैवल था 85 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 35 किलोमीटर। व्हाई? क्योंकि ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था 25 किलोमीटर वो वापस आ गया, तो इतनी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? उसमें से कट हो गई। समझ में आ रहा है? तो it looks similar but these two terms are not similar. Okay, so till now what we have studied? We have studied about what is the definition of motion. Motion क्या है? कुछ मोशंस डायरेक्ट है जो दिखते हैं, कुछ मोशंस इनडायरेक्ट है जो फील होते हैं। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। उसमें सबसे सिंपल, सबसे इजी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहां से मोशन स्टार्ट होता है, उसका इंपॉर्टेंस हमने देख लिया। फिर हमने दो टर्म्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया, एंड दैट टू टर्म्स आर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल। ओके, हमने एक एग्जांपल लिया, उसको आप ठीक से पढ़ लेना। ओके, अब एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन। द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो द वीडियो। ये जो YouTube का वीडियो है उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको अपना नाम लिख के आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन समझ लीजिए। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम O to A एंड देन रिटर्निंग टू C, मैंने जो आपको एग्जांपल पढ़ाया उसमें ऑब्जेक्ट O से A तक गया और B पर वापस आया। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम O to A and then returning back to C, ठीक है? So when it comes back at point C, what is the value of distance traveled and what is the displacement? फिर से समझ लीजिए, मैंने आपको जो क्वेश्चन पढ़ाया उसमें हमने क्या एग्जांपल लिया? ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट O से जर्नी चालू करता है, इट गोस टिल A एंड कम्स बैक टू B। तो हमने डिस्टेंस ट्रैवल कैसे फाइंड किया? तो डिस्टेंस ट्रैवल OA प्लस AB। OA था 60 किलोमीटर, AB था 25, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 85। फिर हमने फाइंड किया डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है B, यानी कितना डिस्टेंस है 35 किलोमीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 35 माइनस 0 दैट इज 35 किलोमीटर। अब मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा उसमें ऑब्जेक्ट O से जाता है A तक और A से तुरंत ही वापस आ जाता है C तक। तो यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स फ्रॉम O to A and comes back to C। और
इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू।